ब्रदर क्या नाम है आपका? रवि। कहाँ से हैं आप? लुधियाना। आपकी गवाही नशे की है। अभी आपकी उम्र कितनी है? 34। 34। कितनी उम्र में आपने नशा शुरू किया और ये नशे आपकी लाइफ में कैसे आए? कौन कौन सा नशा करते थे, आप बताएं खुल के अपनी गवाही। मैं 15-16 साल ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਿੰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਬੋਤਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ 4 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਖਾਧੀ, ਫਿਰ 2, 2 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 4 ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਦਾ। नशे के कारण आपकी लाइफ कैसी थी, कैसा माहौल था घर में? नशे के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था, वो सब बताएं। ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ। लैब टेक्नीशियन थे आप? हाँ जी। तो वहां से जितना पैसा कमाते थे वो सारा नशे में खर्च करते थे? हाँ जी। डे बाय डे नशे बढ़ते गए? हाँ जी। जब नशा नहीं मिलता था उस समय क्या महसूस करते थे, क्या फील होता था? ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। नशे के कारण आपकी जॉब छूट गई थी? हाँ जी। और आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे? हाँ जी। तब पैसा नशे के लिए कहां से आता था फिर? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਕ ਵੇਚਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ वगैरह हो गए, वो सारा ही बेचता सीगा। यानी आप अपने नशे के लिए घर का जो सामान था वो उठा के बेच देते थे? हाँ जी। और फिर धीरे धीरे बाहर से लोगों से उधार मांगकर? मैं अपने फ्रेंड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ दारू ਲਈ ਆਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। हाँ तो जी। जब आप ऐसा करते तो फैमिली क्या करती थी आपकी? फैमिली डिस्टर्ब ही रहंदे सीगे जी, वो परेशान ही सीगे। और नशे में आप उनके साथ झगड़ा भी करते थे? हाँ जी। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी? हाँ जी। सुबह शाम हर समय आपका ध्यान जो था नशे में रहता था, खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती थी? हाँ जी। कभी नशा छोड़ने की कोशिश की? ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2018 ਚ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਰਿੰਕ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3-4। जब परमेश्वर की हजूरी में तो परमेश्वर ने आपकी लाइफ को बदला है। हाँ जी। उससे पहले लाइफ टोटली खराब थी? हाँ जी, टोटली स्पॉइल थी लाइफ। कैसे जाना चर्च के बारे में, कैसे आए आप यहाँ? ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਸੈਮ ਆ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। वो चर्च आते थे, वो आपको चर्च लेके आए? पहली बार जब आए, गवाहियां सुनी, वचन सुन के पहली बार जब आए थे, कैसा लगा था आपको? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। और आपने एक अलग शांति को महसूस किया यहाँ पर? हाँ जी। और फिर आप लगातार चर्च के साथ जुड़े? हाँ जी। ये भाई फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करते रहे। जून 2018 को जब ये फिर से मीटिंग को अटेंड करने आए तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। चर्च अपने हाथों को उठा लो आज और बोलो, हर अंधकार की शक्ति, मुझे पीछे रखने वाली, बीमार रखने वाली, आउट। नशे की दुष्ट आत्माएं, नशे की आदत जो भी आपके लोगों के बीच में वो जाती रहे। मैंने कहा मैं जितना लंबा रो जब ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ था, आप बताएं। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਛੱਡੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਛੱਡਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੈਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੋਟਲੀ कितने मेरा काम साल सही। से आप फ्री हैं? 6 साल तो कोई नशा नहीं है? नहीं। एकदम से जिंदगी बदल हाँ चुकी जी। है और नशा छोड़ने के बाद, खुदा के साथ जुड़ने के बाद परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। लैब आपकी खुद की है। हाँ जी। और क्या क्या खुदा ने आपको दिया? और मेरे को ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ 2, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਲੈਬ ਆਪਣੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, सारा टोटली थैंक यू जीसस बोलते हैं चर्च हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। वचन कहता है शैतान घात करने के लिए, चुराने के लिए आया, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको नई जिंदगी देने के लिए, आपको ब्लेस और आशीषित करने के लिए आए। आपने अगर ध्यान से इस भाई की गवाही को सुना है, टेस्टमनी को सुना है, नशे के कारण शर्मिंदगी आई, बीमारी आई, घर का सामान बेच दिया, ताने सुने, बीमार रहने लगे थे, सब कुछ चला गया था, जॉब तक चले गई थी। पर जब परमेश्वर की हजूरी में नशे गए, खुदा ने जो सब कुछ गया था नशे की वजह से वो सब कुछ लौटाया, डबल करके। खुद की लैब है, गाड़ियां हैं। इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए हालेलुया। सब तारीफ करते हो, धन्यवाद देते हो चर्च भाई।